लास्ट क्लास में हम पढ़े और हिंदी का स्तर कहाँ तक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अलावा विश्व की भाषा भी कहते हैं, क्योंकि भारत के अलावा अन्य देश भी हिंदी सीखने के लिए ऐसा सोच रहे हैं और भारतीय वासियों से व्यवहार करने के लिए उनके लिए हिंदी भाषा आवश्यक हो रही है। इसलिए सब में हिंदी भाषा सीखने में उत्सुकता आ रही है। और यहाँ पर पाठ में देखें तो आपको पाठ के बाद जो कार्य होते हैं, काम होते हैं, अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया, और अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में हमें प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें प्रश्न देखें तो हिंदी विश्व भाषा है, इस कथन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। और व्यक्त कीजिए माने क्या है, क्लियर 4 मार्क्स में या 7 मार्क्स में आ जाता है यह क्वेश्चन। और हिंदी विश्व भाषा है, कैसे हम बता सकते हैं हिंदी विश्व भाषा है, क्योंकि पहले राष्ट्रभाषा और राजभाषा कहते थे, लेकिन आज हिंदी को विश्व भाषा भी कहा जा रहा है, क्योंकि भारत के अलावा अन्य देशों के लोग भी हिंदी के बारे में सोच रहे हैं और सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और भारतवासियों से व्यवहार करने के लिए हिंदी बहुत उपयोगिता में लाने वाले हैं। और कई इंडस्ट्रीज और मीडिया, बैंक में इसकी उपयोगिता बढ़ रहा है और इसके लिए और हिंदी विषय के बारे में जानकारी होना है तो हमें वेबसाइट नंबर भी दिए गए और इन वेबसाइटों में हम जाकर देखें तो हिंदी के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिलेगी। అంటే మామూలు ప్రశ్నలు ఏమన్నాడు, హిందీ విశ్వ భాష కదా, అయితే ఈ మాటని మీరు మీ మాటల్లో వ్యక్తపరచండి అన్నాడు. అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు, హిందీ ముందు రాష్ట్ర భాష లాగానే ఉండే, రాజభాష లాగా ఉంది. రాజభాష అంటే ఏంటి, ప్రభుత్వ వ్యవహారాలన్నీ కూడా అదే లాంగ్వేజ్లో చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లా జరగడం వల్ల దాన్ని ఏమంటారు, రాజభాష అంటారు. అయితే రాజభాష కాకుండా, రాష్ట్ర భాష కాకుండా విశ్వ భాష అయింది అంటున్నాడు. నిజమే కదా, ప్రపంచంలో ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయో దాంట్లో 30-40కి పైగా కూడా దేశాలు ఈ భాష నేర్చుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. వ్యాపార రంగంలోనే కానీ, లేకపోతే ఇంకా మీడియా, బ్యాంక్, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇలాంటి విషయాలలో ఆలోచిస్తే ఇంకా భారతీయులతో పాటు వాళ్ళ బిహేవియర్ తెలుసుకోవడానికి కానివ్వండి, ఇంకా విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి కానివ్వండి, భాష చాలా అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి అందరూ భారతదేశంలోనే కాకుండా అన్ని దేశాల వాళ్ళు ఈ భాషను ఫాలో అవుతున్నారు. అలా అవడం వల్ల రాను దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరిగిపోయింది. కాబట్టి దీన్ని విశ్వ భాష అని చెప్పారనమాట. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న భాషలోకెల్లా ఈ భాష చాలా ఉపయోగంలోకి వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని విశ్వ భాషగా చెప్తున్నారు. అయితే దీనికి సమాధానం మనం దీన్నే రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్, भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी है, कैसे? भारत में अनेकता में एकता అంటే ఏంటి, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. తెలుగులో అంటాం కదా, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటే భారతదేశంలో రకరకాల జాతుల వాళ్ళు, రకరకాల భాషల వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ మనమంతా భారతీయులం ఒకటే అని చెప్పడానికి ఈ హిందీ లాంగ్వేజ్ మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. సపోజ్ మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు వేరే స్టేట్ వాళ్ళు అక్కడ ఒకే కంపార్ట్మెంట్లో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్య కమ్యూనికేషన్కి వాళ్ళ లాంగ్వేజెస్ అంతగా సహకరించవు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళకి హిందీ తెలుసు, వాళ్ళకి హిందీ తెలుసు. ఎందుకంటే చదువుకున్నప్పుడు లాంగ్వేజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా మదర్ టంగ్ ఉంటుంది. అయితే ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు వేరే స్టేట్ల వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఒకరి భాష ఒకరికి తెలియదు, వాళ్ళ మదర్ టంగ్ తెలియదు. అలాంటప్పుడు ఈ లాంగ్వేజ్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకొని కమ్యూనికేషన్ కొనసాగిస్తుంటారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో యూనిటీ వస్తుంది. కాబట్టి అలా యూనిటీకి సింబల్గా మనం హిందీని చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి అది నువ్వు ఎలా చెప్పగలుగుతావు, क्योंकि भारत में अनेकता में एकता का दर्शन हमें हिंदी से होता है, क्योंकि तरह के स्टेट वाले मिलने पर उन दोनों के बीच जो व्यवहार
हम हिंदी में ही कर सकते हैं, जिससे उन दोनों में एकता बढ़ती है। इसलिए एकता का प्रतीक हिंदी ही है। और यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी देखें तो आपको अर्धग्राह्य का पेज नंबर 32 में अर्धग्राह्य का प्रतिक्रिया में आप देखिए, पाठ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। ट्रू और फॉल्स अंటుంటాం కదా మనం అవన్నమాట। हिंदी देश को एकता के सूत्र में बांधती है, सही है या गलत है? हिंदी देश को एकता के सूत्र में बांधती है। हम जान लिया फर्स्ट पैराग्राफ में एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई और वह हिंदी से ही साध्य हुआ है, और यह बात सबके लिए सही है, इसलिए हाँ लिखना। हाँ माने क्या है? ट्रू। और सेकंड वन में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर आप जानते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। और उसी बात को यहाँ कहा, इसलिए यह हाँ है, सही है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह बात सही है। आप जानते हैं हिंदी दिवस कब से विश्व की भाषा ऐसा जान पड़ा? 1975 से हमें 1975 से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, विश्व की भाषा के रूप में अनाउंस किया। और विश्व की भाषा दिवस कब है? 10 जनवरी, और यह भी सही है। और फोर्थ वन है हिंदी भाषा से रोजगार की संभावनाएं अधिक है। हिंदी भाषा से रोजगार, रोजगार माने क्या है? प्रोफेशनली। प्रोफेशनली दिस इज यूज लैंग्वेज, దిస్ ఈజ్ యూజ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్స్ అని చెప్తుంది। అంటే ఇది నిజమా కాదా? निजमे కదా। इन मीडिया, इन बैंक, इन फिल्म इंडस्ट्री, कई तरह के क्षेत्रों में और इसका यूज अधिक है। सो प्रोफेशनली दिस इज गुड, दिस आल्सो हाँ। नेक्स्ट वन ई बिट देखिए, ई बिट। नीचे दिए गए वाक्य पाठ के आधार पर उचित क्रम में लिखिए। पाठ के आधार पर, और इस पाठ में दिए गए वाक्य के अनुसार यहाँ पर ये वाक्य सही नहीं है। भारतीय हिंदी शाब्दिक अर्थ भी कहलाती है, और पहला है भारतीय हिंदी शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ भी कहलाती है। और ये वाक्य में, इस वाक्य में शब्द क्रम अनुसार नहीं है, सही क्रम में नहीं है, और इसे हम क्रम में बनाएंगे। और क्रम में लगाए तो कैसे हम बता सकते हैं? और देखिए हिंदी अपने भारतीय शाब्दिक अर्थ भी कहलाती है। अब हिंदी, और यहाँ सही क्रम में कैसे लिखना है? हिंदी
अपने, और ऐसा क्या करना है हमें, यह ठीक तरह से हम नंबर बता सकते हैं। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाते हैं। समझे ना? अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। और यहाँ पर है, और एक नंबर हम डालें तो बता सकते हैं ऑर्डर में। हिंदी नंबर 2 क्या है, अपने, हिंदी अपने शाब्दिक, शाब्दिक माने क्या है, शब्द के अनुसार, शाब्दिक अर्थ 3-4 अर्थ से पर नंबर, अर्थ से भी 6 नंबर, और भारतीय कहलाती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। और यहाँ पर सेकंड वन देखिए, सेकंड वन क्या है, हिंदी 14 सितंबर मनाते हैं को दिवस। हिंदी 14 सितंबर मनाते हैं को दिवस। यह वाक्य सही क्रम में है नहीं, और इसे सही क्रम में लिखना, और किसके आधार पर, पाठ के आधार पर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को, जवाब देखिए, 14 1 सितंबर 2 को 3, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। कितने हैं, 7। देखो हिंदी को तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस थर्ड वन है, तरह इस हिंदी अंतर्राष्ट्रीय पर शोभित है स्तर। तरह इस हिंदी अंतर्राष्ट्रीय पर शोभित है स्तर।
इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। शोभित मीन्स ब्यूटीफुल, स्तर मीन्स लेवल। और यहाँ पर हिंदी इंटरनेशनल लेवल में बहुत ब्यूटीफुल ऐसे सेट हो गया। स्वस्थ ध्यान पूरा रखना का अपने, और यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे और स्वस्थ ध्यान, स्वस्थ ध्यान पूरा रखना का अपने। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। और ऐसे शब्द क्रमानुसार नहीं है, और इसे क्रमानुसार में लिखे तो इस तरह के वाक्य हमें मिलते हैं। भारतीय हिंदी शाब्दिक अर्थ भी कहलाती है, इसे अपने हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। और इसके बाद आपको ई बिट है, बड़ी बिट में नीचे दिया गया विज्ञापन पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञापन माने क्या है? एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट है और यह इसे ध्यान से पढ़ना है। पहले पढ़ने के बाद आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर कौन सा विज्ञापन है? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा विज्ञापन है? भारतीय स्टेट बैंक वाले एक विज्ञापन दिया, एक एडवर्टाइजमेंट दिया। और पेपर में हम देखते हैं विज्ञापन माने क्या है? वांटेड टीचर्स, वांटेड సేల్స్ గర్ల్స్, వాంటెడ్ సేల్స్ బాయ్స్, అలాంటి మనకి కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పేపర్లో చాలా చూస్తుంటాం. ఏదైనా అప్లికేషన్ పెట్టాలి అంటే వాళ్ళు ఒక యాడ్ ప్రింట్ చేసి మనకి పేపర్లో ఇస్తారు. అప్పుడు మనము దానికి ఎలిజిబుల్ అయితే మనం దానికి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. అయితే ఇక్కడ భారతీయ స్టేట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు. అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? వాణిజ్య ప్రకటన అంటారు. వాణిజ్య ప్రకటన. అయితే మామూలుగా ఇక్కడ బ్యాంక్ ప్రకటన ఒకటి ఉంది. వాణిజ్య ప్రకటన అంటే మామూలుగా సేల్స్ గురించి, ఇదైతే ఒక పోస్ట్ గురించి అనమాట. అంటే బ్యాంక్లో ఒక పోస్ట్ ఖాళీ ఉంది, దాన్ని మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. विज्ञापन क्रम संख्या CRPD/SCEO 1314-1 और भारतीय स्टेट बैंक में राजभाषा अधिकारियों की भर्ती। और क्या है? राजभाषा अधिकारियों की भर्ती అంటే మామూలుగా అఫీషియల్గా ఇక్కడ మనకి భారత స్టేట్ బ్యాంక్లో కొంచెం ఎంప్లాయీస్గా ఒక వేకెన్సీ ఉంది, దానికి మనం అప్లై చేసుకోవాలి. అయితే దాన్ని ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారనమాట. भारतीय स्टेट बैंक में राजभाषा अधिकारियों की भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. అంటే యాక్చువల్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు,
అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్కి సంబంధించిన ఒక ఆఫీసర్గా అంటే మామూలుగా అధికారుల కొరకు ఈ అప్లికేషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే అప్లికేషన్స్ మన సిటిజన్స్ నుంచి తీసుకోవడానికి అక్కడ ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. ఆవేదन మీన్స్ వాట్? అప్లికేషన్. आमंत्रित मीन्स इनवाइटिंग. कौन अप्लीकेशन दे रहे हैं और उनके लिए आवेदन पत्र देना है और आमंत्रित कर रहे हैं हमें అంటే అప్లికేషన్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తున్నారు మనని. అయితే యోగ్య ఆవేదక్ అంటే ఎలిజిబుల్ అప్లికెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో आवेदन करने के लिए అంటే అప్లికేషన్ ఇచ్చుకోవడానికి हमारी वेबसाइट http://www.statebankofindia.com अथवा http://sbi.com इन पर जाकर अन्य विवरण प्राप्त कर सकते हैं. అయితే మీరు ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ వెబ్సైట్ కొట్టినప్పుడు మనకి దానికి సంబంధించిన వెబ్సైట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అని దొరుకుతుంది. అంటే దాని ఎలిజిబిలిటీస్ ఏంటి, క్వాలిఫికేషన్, ఏజ్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఇంకా మిగతా మన ఏమైతే ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఉంటాయో అవి ఏమేమి కావాలనేది ఈ వెబ్సైట్లో మనం చూసుకోవచ్చు. आवेदन शुल्क भेजने से पूर्व विज्ञापन में दिया गया विवरण पूरी तरह से पढ़ लें. అంటే మామూలుగా ఆవేదన శుల్క్ भेजने से యాక్చువల్గా మనం ఏదైనా అప్లై చేయడానికి దానికంటూ ఒక అప్లికేషన్ పంపడానికి ఇచ్చే ముందు కొన్ని పూర్తి వివరాలు మనము చదవాలన్నమాట. ఆవేదన ఆరంభం हो रहे हैं. ఎప్పటి నుంచి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? 25/5/13 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి. పంజీకరణకి అంతిమ తిథి అంటే అప్లికేషన్కి తీసుకోవడానికి ఏ డేట్ ఎప్పుడు ఉంది? 13/7/13 వరకు ఉందన్నమాట. అయితే ఇక్కడ నుంచి మనం ముంబై దినాంకాలు ఇక్కడ ఇచ్చారు. అయితే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్కి పైన ఆధారంగా మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. यह विज्ञापन किस बैंक का है? विज्ञापन किस बैंक का है? ఏ బ్యాంక్ నుంచి ఉంది ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్? यह विज्ञापन भारतीय स्टेट बैंक का है. राजस्थान. नेक्स्ट, किस नौकरी के लिए यह विज्ञापन दिया गया? किस नौकरी के लिए? राजभाषा अधिकारियों की भर्ती के लिए. राजभाषा अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. और विज्ञापन किसके बारे में है? राजभाषा अधिकारियों के लिए. आवेदन करने से पहले वेबसाइट से अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए क्यों कहा गया होगा? और यहाँ पर वेबसाइट क्यों दिया जाता है हमारे लिए? और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो इसी एडवर्टाइजमेंट में दे सकते हैं? नहीं, लेकिन और पूरे डिटेल्स के साथ एक वेबसाइट दिया जाता है. और वेबसाइट में हमें और एप्लीकेशन करने वालों की आयु और क्वालिफिकेशन और जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में और अप्लाई डेट, प्लेस, सरनेम और पूर्ण डिटेल्स के साथ वो फॉर्म दिया जाता है वेबसाइट में. और फॉर्म में देखकर हम उस एप्लीकेशन को फिलअप करना है. और पूर्ण जानकारी के लिए हमें वेबसाइट नंबर दिया जाता है क्योंकि और इस एडवर्टाइजमेंट में पूर्ण रूप से हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते. उसमें देखें तो हमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज है हम देख सकते हैं वेबसाइट में. यहाँ नेक्स्ट पेज में आप देखें तो अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में आपको इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए. इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में 2-3-4 सेंटेंस लो रायाली. सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी का क्या महत्व है? सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी संस्कृति की भाषा हिंदी है और हिंदी में कई लोग अपने भाषण देते हैं. और अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने भाषण हिंदी में देते थे और जिससे हिंदी संस्कृति का पुत्री जैसा है. और ऐसा 3-4 सेंटेंस में हम देना है. और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है. हिंदी भाषा पर एक छोटा सा निबंध लिखना और हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाले. और ये क्या है? पूरे क्वेश्चन आंसर से आपको कठिन शब्द के बाद शब्दार्थ लिखना है. शब्दार्थ के बाद और अर्धग्राह्यता में ये पूरे लिखना है आपको. और ये भी लिखना है. और नेक्स्ट और ये क्वेश्चन आंसर्स भी लिखना है.
और नेक्स्ट भाषा की बात में आ जाएंगे। भाषा की बात में क्या है, ग्रामर पार्ट। हर एक पार्ट के साथ ग्रामर पार्ट जरूरी है। ग्रामर पार्ट का पठन हो जाने से ही पाठ सफल रहेगा। यहाँ पर देखिए भाषा की बात में आपको व्याकरण आ जाएगी। भाषा की बात में पहले आ में देखिए, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। और यहाँ पर कोष्टक में क्या दिया गया, पर्याय शब्द और विलोम शब्द, वचन वर्ग। कोष्टक माने क्या है, ब्रैकेट्स। पर्याय शब्द लिखेंगे और टेक्स्ट बुक से आपको पहला वर्ड है पर्याय शब्द। पर्याय शब्द माने क्या है, पर्याय शब्द पर्याय पदाలు ఇన్ తెలుగు ఏమంటారు, ఉచ్చారణ వేరైనా అర్థాలు ఒకటే, ఒకే పదానికి రెండు కన్నా అర్థాలు ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని పర్యాయ పదాలు అంటారు, అర్థాలు సమానం. భాష, భాషని మనం ఇంకా ఏమనొచ్చు, బోలి అనొచ్చు, జబాన్. నెక్స్ట్ वाणी, नेक्स्ट सेकंड वन, और इसी में फर्स्ट वन है ये है, और ये है आमिर से पर्याय शब्द, और फर्स्ट वन सेकंड. नेक्स्ट वन समाधान. समाधान माने समस्या का निराकरण. नेक्स्ट संकट को दूर करना. नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या है, हल ढूंढना. हल, शब्द हमें पर्याय शब्द के लिए देते हैं. और थर्ड वन है संकल्प. संकल्प का क्या है, दृढ़ इच्छा. दृढ़ निश्चय, पक्का, इरादा. इरादा आल्सो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, प्रतिज्ञा. और कुछ लोगों का दृढ़ संकल्प होता है कुछ करने का काम में, और ऐसा होना है. और नेक्स्ट वन सेकंड बिट में, और ये क्या है, ये भी लिखेंगे और ये भी, ये सी. और ये है पर्याय शब्द फर्स्ट. और सेकंड वन में आपको ABC. सेकंड वन में एकता, स्वदेश, प्राचीन, विलोम शब्द है. एकता का विलोम शब्द क्या है, अनेकता. एकता का विलोम शब्द अनेकता. नेक्स्ट B, स्वदेश. स्वदेश माने विदेश. विदेश, परदेश भी आ जाता है. नेक्स्ट प्राचीन,
नवीन, ऐसा। नेक्स्ट वचन वर्ण, और थर्ड वन में ए क्या है, परीक्षा। वचन वर्ण क्या करना है इसे, वचन वर्ण परीक्षा, परीक्षाएं, नेक्स्ट संस्था, संस्थाएं, नेक्स्ट दिशा, दिशा, दिशा मीन्स डायरेक्शंस, दिशा डायरेक्शन, दिशाएं डायरेक्शंस। ऐसे शब्द को पर्याय शब्द क्या है, भाषा का पर्याय शब्द बोली, जबान, वाणी, और समाधान का पर्याय शब्द समस्या का निराकरण करना, संकट को दूर करना और हल ढूंढना। और ये क्या है, संकल्प, दृढ़ निश्चय, पक्का, इरादा, प्रतिज्ञा। और इसमें क्या है, विलोम शब्द बनाना है, एकता, अनेकता, स्वदेश, विदेश, परदेश, प्राचीन, नवीन। और इसमें क्या है, विलोम शब्द नहीं, वचन वर्ण, परीक्षा, परीक्षाएं, संस्था, संस्थाएं, दिशा, दिशाएं। और नेक्स्ट बिट है प्रत्यय उपसर्ग। और आप इनमें सूचना पढ़िए, और उसके अनुसार कीजिए। देखिए, और इसे क्या करना है, उपसर्ग। उपसर्ग माने जानते हैं आप, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और पहला जो निरर्थक शब्द को जोड़ने से एक दूसरा शब्द में बदल जाता है, वो क्या है, उपसर्ग। वो पहले रखा जाता है, पहले रखा जाता है। और सकुशल में प्रत्यय क्या है, पहले सकुशल। इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, स प्लस कुशल। और इसमें प्रत्यय क्या है, स। नेक्स्ट अनुक्रम, अनुक्रम। और अनु प्लस क्रम। अनुक्रम में क्या है, अनु उपसर्ग है। और नेक्स्ट सी, अनुचित। अनुचित, इसमें अनु प्लस उचित क्या है, अनुचित। यहाँ पर भी अनु, क्यों ऐसा, ये निरर्थक शब्द है, ये निरर्थक शब्द है और ये अर्ध शब्द है। और अर्ध शब्द को निरर्थक शब्द जोड़ने से एक नया शब्द आ जाता है। और नया शब्द में जो निरर्थक शब्दों से बना हुआ शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स और ऐसे सामने जुड़ाया जाता है, और सामने जो दिए गए शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, और इसमें आप ओके, प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है, आपको फर्स्ट वन, प्रत्यय माने क्या है, सफिक्स, वार्षिक। वार्षिक में
इक, वर्ष प्लस इक, वार्षिक। और यहाँ पर क्या है, इक प्रत्यय है। वर्ष को इक का प्रत्यय जोड़ने से वार्षिक बनता है, इसलिए वार्षिक का प्रत्यय है इक। नेक्स्ट बी क्या है, खुशी। और खुशी का आप देखिए, खुश प्लस ई, खुशी, खुश प्लस ई, ई बड़ी की मात्रा है, देखिए यहाँ से राइट साइड में आए सब है, यहाँ पर ई क्या है, प्रत्यय। और सी क्या है, भारतीय। भारतीय में आपको भारत प्लस ई है। यहाँ पर देखिए ये निरंतर शब्द है जो लास्ट में आए हैं, और इन निरंतर शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, और सामने आए हैं ये निरंतर शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। सफिक्स को प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय है, और ये तीन है उपसर्ग। याद रखना है, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, और उपसर्ग प्रीफिक्स सामने आ जाता है, निरंतर शब्द है और ये उपसर्ग है, और ये सेकंड प्लेस में आ जाता है, ये निरंतर शब्द है, ये प्रत्यय है। और आज के लिए ये व्याकरण बस है। नेक्स्ट क्लास में हम पद परिचय लेंगे, और एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का परिचय लेंगे, और रचना कैसे करते हैं दृष्टि से ऐसा। और इसके अतिरिक्त और विलोम, वचन, लिंग और समास, संधि और इनके बारे में जानकारी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।